శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. विदे विकनसे नमः श्रुति स्मृति नदीपूर्णं शास्त्रकल्लोल शंकुलं विष्णुभक्ति युदकं शुद्धं वंदे श्री विकनोर्नवं श्री गोविंद 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 आद्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ कल्याण मंडपे अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम गोत्रोद्भवस्य ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య ఇప్పుడు మీ యొక్క పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య ఇప్పుడు మీ యొక్క భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సపుత్రకస్య ఇప్పుడు మీ యొక్క పిల్లల పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబస్య ఇప్పుడు మీ యొక్క కుటుంబ సభ్యుల పేరు చెప్పుకోవాలి. మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనలు మనసులో స్వామివారికి విన్నవించవలసినది. చెప్పండి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం అష్టకామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన
सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण अनुग्रह सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री भूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याणोत्सवम श्री वैखानस दिव्य आगमोक्त प्रकारेण अहम आचार्य मुखेन कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ఓం నమో వెంకటేశాయ. నారాయణం పరబ్రహ్మం సర్వకారణకారకం ప్రపేద్యే వెంకటేశాఖ్యం త్వవే కవచం మమః. సహస్రశీర్ష పురుష వెంకటేశో శిరో అవతు ప్రాణేశ ప్రాణనిలయః ప్రాణం రక్షతు మే హరి. ఆకాశారాట్ సుధానాద ఆత్మానం మే సదావతు దేవదేవోత్తమ భాయేద్దేహం మే వెంకటేశ్వరః. సర్వత్ర సర్వకాలేషు మాంగమాం బా జానీశ్వరః పాలయేన్ మాకం కర్మ సాఫల్య ప్రయశ్యతు. యద ఏతత్ వజ్రకవచం மவேத் வெங்கடேசத்து. சாயம் பிராத்தத் பிரட்டே நித்தியம் மிருத்யும் தரதி நிர்பயா என்று அந்த திருமலை அப்பனுடைய திருமலையை ஏறும்பொழுது இந்த வஜ்ர கவசத்தை கூறிக்கொண்டே ஏறினால் நம்முடைய களைப்பு கஷ்டம் பாவங்கள் அனைத்தும் போக்குபவன் அந்த திருவேங்கடமுடையான். அப்படிப்பட்ட திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சங்கல்ப மந்திரங்களை கேட்டு இதோ பாதாதி கேசமாக பெருமாளை செவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஸ்ரீவத்ச வெங்கடேசம் ஸ்ரீவத்ச வர்ஷம் சீசம் ஸ்ரீலோலம் ஸ்ரீகரகிரகம் ஸ்ரீமந்தம் ஸ்ரீநிதியும் ஸ்ரீட்யம் ஸ்ரீனிவாசம் மகம் பஜே என்று திருமலையப்பனை செவித்துக்கொண்டு விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியா வாசனம் கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி அருணா. இதோ வைகான சாகம விதிமுறைப்படி ஆரம்பமாகும் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாசனத்துடன் ஆரம்பமாகிறது. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை வாசனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பு. ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதன மலையப்ப சுவாமியை சேவிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. சமேத ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச சுவாமினः வைவாகிகோத்சகர்மாங்கம் சுத்தி புண்ணியாவாதனம் கரிஷ்யே ஆதோ நிர்விக்னேன பிரசமாவாப்த்யர்த்தம் விஸ்வக்ஷேனாராதனம் கரிஷ்யே ततः कलशाराधनं करिष्ये. दारादु तत्तत्सुतमानसेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अभोमि गृह्णं प्रतिमादिगिष्ये. गृणोमि दत्ताकुं सुचरकुं सुधर्म इदमापशिवा शुभतमाज्यान्ताज्यान्ततमाशुभ शुभतमाः पूताः पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्य मेद्यतमा अमृतामृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण भूताः सूर्यस्य रश्मिभिः एतेषु तं वरुणयेदहस्रं निग्निजाः पाशा वितताः पुरुत्राः तेभ्यो नयन्द्रस्य विदोद विष्णुर् विश्वे देवा मुञ्चन्तमृतस्वस्य. ओं भो वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि. वरुणाय नमः. इदमासन वरुणाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. वरुणाय नमः. पुण्यपुष्पैः पूजयामि. वरुणाय नमः. गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि. वरुणाय नमः. सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु.
ओमाग्नेजोजस्माद्वदामहे त्वा विश्वे चिदात्मन्महितो न शम्भो वैराजन्ते सुखदन्निदत्तां प्रैषामदेशो विबुधानामनादिः यामे दत्तान्दनितान् ददातु ॐ भूस्वक्षेणमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि सूत्रवदेवावाहयामि वामेजयामावाहयामि विश्वक्षेणाय नमः इदमासन विश्वक्षेणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्षेणाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः नित्यानपायने नमः सूत्रवत्ये नमः विश्वक्षेणाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्षेणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु भवद्वृणुग्नः सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा स्वस्तु प्रोक्षितमस्तु अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां प्रजापतिः श्याम्यन्तु गौराणि श्याम्यन्तु पापानि श्याम्यन्त्वा यदयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि श्याम्यन्तु गौराणि श्याम्यन्तु पापानि श्याम्यन्त्वा यदयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि श्याम्यन्तु गौराणि श्याम्यन्तु पापानि श्याम्यन्त्वा यदयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि ओं मतो देवावन्तु नो यदो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानददे पदं समूढमस्य बागुंसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यतयदो वृदानि पस्पसे इन्द्रस्य जुद्धस्सका तद्विष्णोः परमं पदकं तदा पश्यन्ति शौर्यः दिवे वचक्षुरादतं तद्विप्रासो विपण्डवोज गृवागुं सस्यमिन्ददे विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कर्णेऽपि शृणुयाम देवाः भद्रं पश्ये माक्षभिर्जदित्राः स्त्रीरङ्गे षष्ठवागुंसस्तनोभिर्यसेमधेतं जदायुः शतमिन्नुशरुधान्ति देवा यत्र नश्चक्राचरसन्तनूना पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीनुषदा युद्गन्तोः अतिथिर्झौरतिथिरन्तरिक्षं अतिथिर्मातास्य पितास पुत्रः विश्वे देवातिथिः पञ्चजना अतिथिर्जातमतिथिर्जनित्वं यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वक्तुर्वेदो वब्जुषं यदा वै सूर्योदयते अधनक्षत्रण्येति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वेदेत्कारे स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानायम्यास्यां सुपतितो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं सुतपुण्यावादनं स्वस्तिं ब्रवन्तो क्रमणे स्वस्ते वृद्धिं ब्रवन्तो कर्मरुध्यता वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आभोजुष्ठामजोपवस्थानवोर्जेतदातन महेरनाजचक्षुषे यो वत्सवदमोरधस्तस्य पादयते अनः उषदेर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामभोजस्यक्षजाजन्मद आपो जनयदाचनः दिविश्रयस्वान्तरिक्षेदस्व पृथिव्याः सम्भव ब्रह्मवच्चसमसि ब्रह्मवच्चसायत्व पवमानस्सु वर्जनः पवित्रेण वितर्षणिः यः पोता स पुनातुम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोदिय पुनन्तु विश्व आयुवः जातवेद पवित्रवद पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदेद्यद अग्ने कृत्वा कृतो गुम्रणो यत्ते पवित्रमक्षसे अग्ने विततमन्तराः ब्रह्मदेन पुनेमहे उपाभ्यादे वसुवितः वैश्वदेवे पुनते देव्यागाद यस्ते भव्येस्तनुवो व्रेतपुष्टाः तया वदन्तस्य दमाद्येषु वजग्गुस्यामुपतजोर्गीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातप्राणेन शिरोमयोभूः द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः तथा वरे जग्निजे मा पुनेता बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्मिभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा पुनत येनापो दिव्यङ्कतः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनेमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागाद यस्ते भव्येस्तनुवो वेदमुष्टाः तया वदन्तस्य दमाद्येषु वजग्गुस्यामपतजोर्गीनान् वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातप्राणेन शिरोमयोभूः ध्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः ऋतावरे जग्निये मा पुनेता बृहद्भिस्त्वविदस्रुभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा पुनत येन दिव्येन ब्रह्मणा दिवं ब्रह्म पुनेमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागाद येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्र सदोद्यामुगं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनेमहे
इन्द्रस्य नेते सहमा पुनातु सोमस्वस्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रभिनापि पुनातु मा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु तत्संयोरावृणेमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्ति गातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे शुञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। राज्ञा दिशु देव ऋत्वजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशुमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रदेत्या दिशगृहाः पशवो मार्जयन्तां उदेत्यां दिश्या पपोषतयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वाजां दिशि यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अदोदरादरैर्रागेभ्यो मार्जयन्तां वास्तोष्पदे प्रजदानि हस्पान् स्वावेशोहनमेवोपमानः अर्थे न्यूनं प्रजदन्नोचितस्वा सन्नयेद्विपदे चिञ्चजुष्पदे अमेवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्यां विशन् सकासुषे वजेदिनः वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः पुनर्पादर्घं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्षेणाय नमः यदा सुखमदास्थानं प्रतिष्ठापयामि क्षोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। இருக்கிறோம். இப்பொழுது திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கல்யாண உற்சவத்திலே மலையப்ப சுவாமி ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களுக்கு நித்திய கல்யாணம் பச்சை தோரணம். அந்த பக்தர்களை எப்படி அவன் அருளி செய்ய வேண்டும் என்றால் இதோ இந்த திருமுலை சாற்றுதலிலே நாம் பார்க்கலாம். பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை தேவர்கள், அஷ்டதிக்பாலர்கள், கிண்ணறர்கள், கிம்புருஷர்கள் ஆகியவர்கள் அனைவரும் கூட அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடி ஒளிபரப்பில் அவர்களும் சேவிக்க வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை வரவேற்பது எப்படி? அந்த பக்தர்கள் எல்லாம் கூட தாசிய பக்தியாக பகவானை சரணாகதி செய்து அந்த அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நேரடியில் நாம் பார்த்து சேவித்து பகவானுடைய அனுகிரகத்தை பெற வேண்டும் என்பது. சரணாகதி என்றால் அந்த பகவானுடைய திருவடிகளை கைப்பற்றி எப்பொழுதும் சரணாகதி செய்து சேவிக்க வேண்டும். இதிலே மிகவும் விசேஷமான சரணாகதி தாசிய பக்திக்கு ஹனுமந்தனும் சரணாகதிக்கு விபீஷணனும் வந்து சேர்ந்து அந்த இருவரும் செய்யும் சரணாகதியை இப்பொழுது பார்க்கலாம். விபீஷணன் ராமனிடம் வந்து சேர்ந்தது விபீஷணன் என்ற சொல்லுக்கு பயமில்லாதவன் என்று பெயராம். அந்த பயமில்லாதவன் அதனால்தான் ராட்சசனான சகோதரனுடன் பிறந்து பயமில்லாமல் ராமபிரானுடைய திருவடியை சரணாகதி செய்தவன். ஹனுமந்தன் கூட அவ்வளவுதான். அதாவது ஆஞ்சநேயர் யாருக்கும் பயப்பட மாட்டார். தான் நினைத்ததை அந்த காரியம் நிறைவேறும் வரை தொடர்ந்து அதை சாதிக்கும் பற்று உள்ளவன் ஆஞ்சநேயர். தாசிய பக்தி. இதோ திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரத்தை முடித்துக்கொண்டு ரக்ஷைகளுக்கு பூஜை ஆரம்பமாகிறது. ரக்ஷா பூஜையை சேவிக்கலாம். இப்படி நவவித பக்திகளாக இருக்கும் ஒவ்வொரு பக்தனுக்கும் அந்த எம்பெருமான் அருளி செய்வான். அப்படி விபீஷ்ணர் எவ்வாறு சரணாகதியை செய்கிறார் என்று ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்திலே சேவிக்கலாம். இதோ இப்பொழுது ரக்ஷா பூஜை. ரக்ஷாபந்தன பூஜாஞ்ச கரிஷ்யே சுன்னோனி தத்தாந்த பசோனி தத்தா ஸ்வயம் பிரதக்னே மிருதயே புராஜா கோம்பூ சேஷமாவாஹயாமி நாகராஜுமாவாஹயாமி சாஸ்திரஷுமாவாஹயாமி அனந்தமாவாஹயாமி சேஷாய நமः இதமாசனம் சேஷாய நமः பாத்யம் சமர்ப்பயாமி அர்घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि शेषाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि शेषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवतु। हरिः ओं स्वस्ति नो मिमेतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यतिर्नर्वणः
स्वस्ति भूषासुरो ददातु स्वस्ति ध्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुरुपब्रमावहै सोमं स्वस्तु भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तये देवावद्ब्रुवस्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रपार्ध्वं मदः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति भद्रे रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृते स्वस्ति मन्तामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसामिव पुनर्ददाज्ञादासुद्धमेमहे स्वस्तैरन्त्राक्षमरिष्टने महद्बोधं वाचसन् देवदानां ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतान् ध्रुव शुभगुं शुभम्. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. அப்படி நவவித பக்திகளை நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த நவவித பக்தியிலே தாஸ்ய பக்தி ஹனுமந்தனுக்கும் சரணாகதி பக்தி விபீஷணனுக்கும் பொருத்தமாக அமைந்துள்ளது. ரக்ஷா பூஜையை தொடர்ந்து ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். ரக்ஷா பந்தனம் என்பது தம்மையெல்லாம் நம்பி வந்திருக்கும் பக்தர்களை காப்பது அந்த பகவானுடைய அருளிச் செயல். அப்படி அந்த அனைத்து பக்தர்களுக்கும் அனைத்து விதமான பக்தர்களுக்கும் அருளிச் செய்பவன் காத்தருள்பவன் பகவான் வேங்கடமுடையான். விபீஷணன் என்ற சொல்லுக்கு பயமில்லாதவன் என்று பொருள் என்றும், அப்படி ராவணன் தவறு செய்த பொழுது அதனை சுட்டிக்காட்டி நல்லதை எடுத்துச் சொல்லி திருத்த முயல்வதும், ராவணன் திருந்த மறுத்து வெளியே போய்விடு என்று என் எதிரில் நின்றால் யமலோகம் அனுப்பிவிடுவேன் என்றதும் அங்கிருந்து வெளியேறிய தீர்மானித்தது விபீஷணனுடைய அந்த செயலானது. அதாவது ஹிதம் சொல்லுபவர் யாருக்கும் கூட அந்த ஹிதத்தை கேட்கும் அளவிற்கு பொறுமை கிடையாது. நமக்கு இவன் என்ன சொல்லுவது என்ற ஒரு நோக்கத்திலே அந்த ராவணாசுரன், அதுவும் அதாவது 10 தலைகளை உடையவனுக்கு அந்த பொறுப்பில்லாமல் தான் என்ன செய்தாலும் யாரும் கேட்க மாட்டார்கள் என்ற ஒரு அகம்பாவத்தினால்தான் அவன் அழிந்தான். அப்படி தன்னுடைய சகோதரனான விபீஷணன் கூறும்பொழுது அவனை எடுத்தெறிந்து பேசி, அவன் இன்னும் அதிகமாக பேசினால் யமலோகத்திற்கே அனுப்பிவிடுவேன் என்று கூறியவன் அந்த ராவணாசுரன். அப்படி அந்த விபீஷன் சரணாகதி செய்த ராமபிரான் தசாவதாரத்திலே அந்த ராமாவதாரம் எடுத்தவன் இதோ இங்கே திருமலை அப்பனாக திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே காப்பு கட்டுதல் கைங்கரியத்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய, கோவிந்தா கோவிந்தா என்று மாசி மாதம் தசமி திதி திங்கள் கிழமை விசேஷமான இந்த நன்னாளிலே பகவானுடைய, அதாவது மிருகசீரிஷ நட்சத்திரம், இந்த நன்னாளிலே பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை திருமலையிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். இப்படி அந்த விபீஷணன் வெளியே வந்த பிறகு அதிக தைரியம் நல்லதை சேர்வதில் வேண்டும். இந்த இரண்டையும் செய்ய முடியாததால் தான் ஏராளமானோர் இன்னலில் அகப்படும்படியாக ஆகிவிடுகிறது என்று. ஆனால் விபீஷணன் இந்த இரண்டையும் மிகவும் தைரியமாக கடைபிடித்தான். தீயவனான ராவணனை விட்டு விலகியதும் பரம்பொருளான ராமபிரானை தேடி வந்ததிலும் விபீஷணனின் தூய உண்மை, அதாவது உண்மையான சரணாகதி வெளிப்படுகிறது. ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பகவானுடைய வலது கரத்திலே அந்த ரக்ஷையை அணிவித்து அர்ச்சக சுவாமி சேவித்து கொண்டிருக்கிறார். அதை வெளிப்படுத்துவதுதான் அந்த விபீஷண சரணாகதி என்றும். நல்லதை தேடி வந்த விபீஷணன் அதில் எவ்வளவு உறுதியாக இருந்தான் என்பதை நாம் பார்க்கலாம். கடலில் அணை கட்டி மறுகரைக்கு வந்தார்கள் அனைவரும். ராமபிரான் முதலானோர் வானர வீரர்களுடன் அங்கேயே தங்கியிருந்த வேளையிலே ராவண ஒற்றர்களான சுக சாரன் என்பவர்கள் வானர வடிவில் வந்து படைகளுடன் கலந்து விட்டார்களாம். வானர படைகளை அப்படியே சுற்றி வந்து மேற்பார்வையிட விபீஷணன் உண்மையை புரிந்து கொண்டான். இருவரையும் பிடித்து ராமபிரான் முன்னால் நிறுத்தி, இவர்கள் இருவரும் வானர வீரர்கள் அல்ல பகவானே, ராவண ஒற்றர்கள்.
சுகன், சாரன் என்ற இவர்கள் பெயர். ஆனால் அந்த ஒற்றர்களோ இல்லை இல்லை, இந்த குரங்கு கூட்டத்தை அழிக்க விபீஷணன் சூழ்ச்சி செய்கிறான் என்றும் நாங்கள் இருவரும் உண்மையிலேயே வானர வீரர்கள்தான் என்றும் வாதாடினார்களாம். அப்படி அங்கே ராமபிரானுக்கு தொண்டு செய்தவன் விபீஷணன் அனுமந்தன். இதோ திருமலையப்பனுக்கு அந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே அர்ச்சக சுவாமி செய்யும் சேவையை இப்பொழுது நாம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்து பூமி பிராட்டிக்கு இப்பொழுது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அந்த தாயாரையும் நாம் சேவிப்போம். அப்படி ராவணாசுரன் அனுப்பிய அந்த ஒற்றர்களான அவர்கள் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை, தாங்கள் வானரர்கள்தான், இந்த விபீஷணன் தான் சூழ்ச்சி செய்கிறான் என்று. இவர்கள் அதாவது கள்ள வடிவிலே வந்த ஒற்றர்கள் தாம். இதோ பாருங்கள் என்று விபீஷணன் ஒரு மந்திரம் சொல்ல ஒற்றர்கள் உண்மையான அந்த வடிவத்தை பெற்றார்களாம். அந்த நிகழ்வை இப்பொழுது இந்த பாசுரத்திலே பார்க்கலாம். கள்ளரே காண்டி என்னா மந்திரங் கருத்து கொண்டான், தெள்ளிய தெறிக்கு தெய்வ தீவினைகள் சேர்த்தலோடும் துள்ளியன் ரதந்தோய்ந்து தொன்னிரங்கந்து வேறாய் வெள்ளியோடு இருந்து செப்புமான் என வேறுபட்டார் என்று கம்பராமாயணத்திலே கூறப்படுகிறது. பூமி பிராட்டிக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்தார். வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அடுத்து அர்ச்சக சுவாமி ஆத்ம ரட்சைக்கான கயிற்றினை அணிந்து கொண்டு மேற்கொண்டு கைங்கரியங்களை செய்ய உள்ளார். அப்படி யாராக இருந்தாலும் என்னை சரணடைந்தவனை நான் கைவிட மாட்டேன் என்று கூறும் ராமாவதாரத்திலே அந்த பகவானுக்கு காப்பு கட்டுதல் கைங்கரியத்தை இப்பொழுது திருமலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே சேவித்தோம். அடுத்ததாக அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிக்க உள்ளோம். யக்ஞ ரக்ஷக கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அக்னியை ஆவாகனம் செய்து அதிலே அந்த ஹோமத்தை செய்ய உள்ளார். அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை சேவிப்போம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் இதோ அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை செய்ய உள்ளார். அந்த அக்னி ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். இறுதியிலே லாஜ ஹோமம் பிரதான ஹோமத்தை செய்து பூர்ணாகூத்தியுடன் அந்த ஹோமமானது நிறைவு பெறுகிறது. வேண்டுவோம் அந்த வேங்கடவனை திருமலை அப்பனை. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிக்கலாம். யக்ஞரக்ஷக கோவிந்தா என்று அந்த அக்னி பகவானை ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். இதோ அந்த அக்னி குண்டத்திலே அந்த அக்னி ஆவாகனம் செய்து மேற்கொண்டு ஹோமத்தை செய்கிறார்கள். ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியத்தை நாம் நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். யக்ஞரக்ஷக கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த அக்னி ஆவாகனம் செய்து மேற்கொண்டு ஹோமத்தை செய்ய உள்ளார். திருமலை அப்பனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ஒவ்வொரு கைங்கரியமும் அந்த பகவானுக்கு பார்த்து செய்யப்படுகிறது. தவறுகள் ஏதேனும் இருந்தால் கூட அந்த பகவான் மன்னித்து பக்தர்களை அருளிச் செய்வான். கோவிந்தா கோவிந்தா. ஓம் போ பிரம்மாணமாவாஹயாமி பிரஜாபதிமாவாஹயாமி हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासन सोमो देनकं सोमोर्नन्तमाशकं सोमो वीरङ्कर्मण्यं ददातु सादण्यं विदत्तकं सुबेजं पितुश्रवणं यो ददातु तस्मै ओं भू सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमाय नमः गुलोपहार निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ब्रह्मसोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीत सुप्रसन्न वरदो भवदो ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्तयत्वन्नागस्तु पृष्ठेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणागुं सुकृताम्यत्रलोक तत्रयमग्नं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष पात्रादाधावमादाज पवित्रेऽस्तो वैष्णव्येऽस्तो यज्ञजेऽस्तो वाजपूतेऽस्तो विष्णो मनसा भूतेऽस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः
दिवे त्वा अंतरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा पोषाय त्वा स्वाहा देवेभ्यः आदित्यव्यञ्जनमसे पश्चिमतो विष्णोस्तोपोसे दक्षिणतो विष्णोस्तोपोसे उत्तरतो उदित्ये विष्णोस्तोपोसे पश्चिमतो विष्णोस्तोपोसे प्राच्यां विष्णोस्तोपोसे श्रुतासे कृतासे ध्रुवासे दारुणासे विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मन् प्रणेष्यामि च मानवाचं यच्च सोम प्रणेष्यामि च मानवाचं यच्च प्रणयज्ञं देवता वृद्धयत्पुण्डागस्तमुष्टेन मानोऽस्तु सप्तऋषेणागुं सुकृतां यत्र लोक तत्रैवज्ञं यजमानं च देहे ॐ प्रणय कोपो जनत्को सवो जनत्को सव्यशन्तान् विषः पात्राणि देवयज्ञायै सव्यशन्तान् विषः पात्राणि देवयज्ञायै दक्षिणपदो ब्राह्मेण तेन प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अवोपस्पृश्य श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपास्यज्ञमावाहयामि यज्ञदेविष्मान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यभागे प्रजापते दुष्टनिर्वपामि इंद्राय दुष्टनिर्वपामि अग्ने दुष्टनिर्वपामि सोमाय दुष्टनिर्वपामि अग्ने सोमाभ्याः दुष्टनिर्वपामि प्रजापते दुष्टनिर्वपामि ब्रह्मणे दुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो दुष्टनिर्वपामि मरुभ्यो दुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो दुष्टनिर्वपामि अवोपस्पृश्य श्रीविष्णवे दुष्टनिर्वपामि बृहस्पते दुष्टनिर्वपामि मित्राय दुष्टनिर्वपामि वरुणाय दुष्टनिर्वपामि आदित्येभ्यो दुष्टनिर्वपामि अश्विभ्यः दुष्टनिर्वपामि पूष्णे दुष्टनिर्वपामि कक्षाय दुष्टनिर्वपामि कक्षदेवतसोमाय दुष्टनिर्वपामि औपासनिज्ञाय दुष्टनिर्वपामि यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्यो दुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो दुष्टनिर्वपामि आद्यन्तु प्रतिष्ठयामि चुरन्तु प्रतिष्ठयामि अग्ने ज्योतिरसे समितिसे स्वाहा अमृतनमसि वारुणमसे अन्तरितकं रक्ष अन्तरिताराधयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टाराधयः चिक्पति स्वापरात् त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पति स्वापरात् त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्वापुरात् त्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा कलसम्पूर्णा समितो गृहीत्वा मूलाग्न्याकृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्थ अक्षत आध्याचरुभिः इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुदये नमः वरुणाय नमः वाजवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजराप्वे नमः विसर्पणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदुतेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवदविदप्रसुभा ब्रह्मन् सोत्वपादात्मा दस्वा समेत यस्वाहा आगार मुहूर्तोस्तु परिधिं स्पृष्ट्वा वाजव्यादाग्नेय अन्तं प्रजापतिके स्वाहा नैऋत्याधीशान अन्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्नि सोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतिके स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अवोपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतिके स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्विभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवतसोमाय स्वाहा औपासृज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा चुरन् सावित्रा गृहीत्वा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं शुभ स्वाहा ओं भूर्भुवस्सुव स्वाहा अदितेन्व मुद्गुस्तानुमदेन्व मुद्गुस्ता सरस्वतेन्व मुद्गुस्ताः देवदविदप्रासाभिः प्राणानायव्यास्यां सुपतितो श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् औपासनाख्यो मन्त्रलोपे ज्ञालोपे द्रव्यलोपे कालविपर्यासे कर्मविपर्यासे न्यूनातिरिक्त सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवहों होष्ये अदितेन मन्यस्वानुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवदविदप्रसुभ ओं मतो देवावन्तुनो यतो विष्टुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्टुर्विचक्रमे त्रेधानतदेवदं समूढमस्य पाकुंसरे स्वाहा त्रीणि पदां विचक्रमे विष्टुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोकर्माणि पश्यतयतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युद्धस्तका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं ददा विष्णुन्तु शौर्यः दिवे वदक्षुरादिदग्गु स्वाहा तद्विप्रासो विपञ्चमो जाग्रुवाकुं तस्कमिन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग्गु स्वाहा
ओम भू स्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम सुवस्वाहा ओम भूर्भुवस्सुवस्वाहा अदितेन्वमग्गुस्तानमदेन्वमग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमग्गुस्ताः देवदविद प्रासामेः కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమిన వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికిని బలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము ఏడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందెనిదే నడచి పరుషలు నానా ముఖముల ఉడుపులు చదువరు ముయిగానరులు నడచి పరుషలు నానా ముఖముల ఉడుపులు చదువరు ముయిగానరులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు ఆడరు పాడరు महानालायमानस्य परिराजश्चेतस्य सहस्रफणाफणिमण्डलमण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जनपुष्पदन्त सार्वभौम अष्टदिग्दण्डशुण्डाद्दण्डोद्दम्बिते अमरावते तेजोवते संयमनिरक्षोवते सिन्धुमते गन्धवत्तिलकावते जशोवते त्वष्टदेवपुरे विराजिते इन्द्राग्नियमुनिरुचवरुणवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकान् लोकान् चलबलयिते लवणेक्षुरासर्पिर्ददिक्षेरशुद्धोदकाख्य सप्तान्न परिवृते जम्बू प्लक्षकुशक्रौञ्च साकशाल्मि पुष्कराख्य सत्त्वद्वेपद्वेपिते माहेन्द्रमलयमदृक्ष्वदिन्द्यपारयात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुषा हरीलावृतभद्रास्वकेतुमाल हिरण्यकरमनक गुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटि योजन विस्तीर्णवो मध्ये लक्षयोजनविस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारुण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ते कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे
कृष्णागावेर्योर्मध्यप्रदेशे आदिवराहक्षेत्रे वेङ्कटाचले सकलदेवतासन्निधौ सकलजगत्त्रष्टुः परार्धेद्विवनो ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे प्रथमवर्षे प्रथमपक्षे प्रथमे हनि द्वितीयायामे इह जन्मनि च हे दक्षिणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्तनावृत्तमहापातकादि समस्तदुरितक्षयार्थं दशपूर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां च कुम्भीपाकलोकितदामादिभिसङ्गातः कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तरस्थले सूर्यमण्डलपर्यन्तम् आमोद ब्रह्मोद संहोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थम् श्रीलक्ष्मीनारायण प्रीत्यर्थम् भृगुमरीचत्रकस्यपादिभिः कोटिचातुर्लक्षप्रणानेन दिव्यवैदिकविधानेन नानाविधशास्त्रोक्तमार्गेण वेदोक्तप्रकारेण विकनसोक्तप्रकारेण हेमाद्रिकन्यादानफलावाप्त्यर्थम् कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणकगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य शङ्खचक्रगदापद्माङ्कित कोटिसूर्यप्रकाशस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैगानसभगवस्यास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविधव्योह प्रवर्तमानस्य परतत्त्वव्योहन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गेरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयो ख्यातिवसाद उत्पस्थितलयकारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आङ्गेरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवतानि कुटुम्बकुटुम्बनगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्गेरस भारस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य कौस्तुभालंकृताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्य माल्योशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्ण गरुड़ वाहनारूढ़ाय अचिंत्यात्मक नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाखाध्यायिनो अखिल लोक पवित्र गोत्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराज ऋग्यजुष्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनी भार्गवत्योरौत्म और्वमैन्द्र पंचारुषेय प्रवरान्वित भार्गवस गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवदे सुरांगना संसेवित बाधारविंद श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनी आनंद गुणात्मिक मूल प्रकृति रूपा उत्तर फल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जाताम् इमां श्रीदेवी नाम्ने कन्यां वृणेमहे वृणीत्वं धास्यामि ऋग्यजुष्यामादर्वण सकल वेदाध्यायिनी कात्सपावत्सारणैद्रवत्रयारुषेय प्रवरान्वित काश्यपस गोत्रोद्भवी सर्वालंकारपदे सुरांगना संसेवित बाधारविंद श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरे अत्यंत सौंदर्यवदे रेवती नक्षत्रे मीनरासो जाता कश्यप प्रजापते संकल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्ने कन्यां वृणेमहे वृणीत्वं धास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां धास्यामिष्टवेदुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षयेत् कन्यां स्वलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धयेत् विश्वम्भरः सर्वभूतः साक्षण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभं शुभ। ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नमो नारायणाय।
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய். திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இவ்வளவு நேரம் அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமம், மதுபர்க்க பூஜை, திரை பிடித்தல், வஸ்திர சமர்ப்பணம் மற்றும் மகா சங்கல்பம், கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை சேவித்தோம். இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜையை சேவிக்க இருக்கிறோம். இந்த சரணாகதி தத்துவம் என்பது பகவானிடத்திலே நமக்குள்ள பற்றை தெரிவிக்கிறது. அப்படி ராமாவதார காலத்திலே விபீஷணன் அந்த ராவணாசுரனுடைய சகோதரனாக பிறந்து கூட அவனுடைய பக்திக்கு ராமபிரான் இலக்காகினார். அப்படி அந்த ஒற்றர்களை கண்டுபிடித்து இவர்கள் அந்த ராவணாசுரனின் மனிதர்கள் என்று கூறி விபீஷணன் ஒரு மந்திரத்தை சொல்ல, அந்த மந்திரத்தை கேட்ட பிறகு வெள்ளியோடு இருந்த செம்பு அமிலத்தில் இடப்பட்டது போன்று தனித்தனியாக பிரிந்து நின்றதை பார்த்த வானர வடிவம் நீங்கி அசுரர்கள் வடிவோடு நின்றார்களாம் அந்த ஒற்றர்கள். அதை அடுத்து விபீஷணன் யுத்த களத்திலே கும்பகர்ணன் புகுந்த பொழுது கும்பகர்ணன் யுத்தத்திலே நுழைந்தான். அவனை பார்த்து ராமபிரானே வியந்தாராம். விபீஷணா, யாரிவன்? தோளோடு தோள் தாம். நாம் பார்த்து முடிக்க பல நாட்கள் ஆகும் போல் இருக்கிறதே. கால்கள் முளைத்து ஒரு மலை நடந்து வருவது போல் இருக்கின்றது. யார் இவன் எனக் கேட்டாராம் ராமபிரான். பெருமானே, ராவணனின் தம்பி இவன். எனக்கு அண்ணன். சூலாயுதம் கொண்டு உலகையே வென்றவன். நல்லவன். தர்ம விரோதிகரமான காரியம் செய்திருப்பதால் நாம் உயிரிழந்து விடுவோம் என்று ராவணனுக்கு எவ்வளவோ அறிவுரையும் சொன்னவன் இவன். இவன் அதை ஏற்கவில்லை ராவணன். ஆகையால் அவனுக்காக உயிரை விட தீர்மானித்து வந்திருக்கிறான் இவன் என்றானாம் விபீஷணன். இதன் பிறகு சுக்ரீவன் ஆலோசனையின் பெயரிலே ராமபிரானுடைய உத்தரவுப்படி கும்பகர்ணனை அழைப்பதற்காக போனான் விபீஷணன். போனவன் கும்பகர்ணனின் கால்களிலே விழுந்து வணங்கினான். கும்பகர்ணனோ விபீஷணனை வரவை விரும்பாமல் விபீஷணனுக்கு நல்ல உபதேசம் செய்தானாம். என்னவென்றால், விபீஷணா, அண்ணா, எனக்கு ராமர் தந்த அனைத்து செல்வங்களையும் உனக்கு தந்து உன் அடிமையாக உனக்கு அடங்கியிருப்பேன் நான். ஆனால் என் மனத்துயர் நீங்கும்படி தீரும்படி நீயாவது ராமபிரானை அடைந்து தர்ம வழியில் நடந்து கொள்ள வேண்டும். அக்கிரம வழியில் நடப்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்ன, தர்மத்தில் நம்பிக்கை உடையவர்கள் பழியை பற்றி அஞ்சாமல் அக்கிரம வழியிலே நடப்பவர்களாக கைவிடுவார்கள் அல்லவா? ஆகவே மும்மூர்த்திகளில் சிறந்தவரான பகவானே ராமபிரான் வேடத்திலே அறத்தை நிலைநாட்ட வந்திருக்கிறார், தர்மத்தை நிலைநாட்ட வந்திருக்கிறார். ராமபிரான் அருள் உனக்கு கிடைத்தால் அனைவரையும் விட நீ பெரியவனாகி விடுவாய். யாராலும் உன்னை வெல்ல முடியாது என்று ஹிதம் கூறுகிறான் கும்பகர்ணனுக்கு அந்த விபீஷணன். தேவர்க்கு தேவன் நல்க இலங்கையில் செல்வம் பெற்றால் யாவர்க்கும் சிறிய இல்லை. யாருனை நலியுமீட்டார் மூவர் குகந்தர் தலைவரான மூர்த்தியார் அறத்தை முற்றும் காவர்க்கு புகுந்து நின்றார் காகுத்த வேடங்காட்டி என்று கம்பராமாயணத்திலே கூறுகிறார்கள். எவ்வளவோ எடுத்து சொல்லியும் விபீஷணனின் வார்த்தைகள் ஏற்க மறுத்துவிட்டான் கும்பகர்ணன். கும்பகர்ணன் என்னும் தலைப்பில் எப்படி என்றால் யாருடைய பேச்சுக்களையும் அவன் கேட்க மாட்டான். இந்த விபீஷணன் தர்மவான், சரணாகதி என்று உன்னை அடைந்திருக்கிறான், இவனை காப்பாற்று, இவன் உன்னுடைய அடைக்கலம் என்று விபீஷணனுக்காக ராமபிரானிடம் வேண்டினான். இதிலிருந்து விபீஷணனுடைய அந்த சரணாகதி தத்துவம் தெரிகிறது. அப்படி ராமாவதார காலத்திலே விபீஷணன் சரணாகதியை இவ்வளவு விரிவாக கூறியிருக்கிறது கம்பராமாயணம். அந்த ராமபிரானை சேவிக்கும் காலம் திரேதாயுகம். திரேதாயுகத்திலே ராமாவதாரம் எடுத்தவன் கலியுகத்திலே வேங்கடவனாக எழுந்தருளி இதோ கல்யாண உற்சவத்திலே அந்த மாங்கல்யங்கள் பூஜைகளை செய்து கொண்டிருக்கும் கைங்கரியத்தை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். நாம் பகவான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். அப்படி
ஒருவரை நம்பி, அதாவது பெருமாளை நம்பி நாம் எந்த ஒரு காரியத்தை செய்தாலும் நம்பிக்கையுடன் பூரண விசுவாசத்துடன் செய்தால் அது நிச்சயம் வெற்றி பெறும். இதோ மாங்கல்ய பூஜை முடிந்து மாங்கல்ய தாரணத்தை செவிக்க உள்ளோம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா, வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று செவிக்கலாம் அந்த மாங்கல்யங்களையும் நாச்சிமார்களையும். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. प्रजापतिः सोमकुं राजानमुसृजतां तन्त्रजो वेदान्वसृज्यन्तां तान् हस्ते कुरुताम् अतः सैता सावित्री श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. प्रजापतिः सोमकुं राजानमुसृजतां तन्त्रजो वेदान्वसृज्यन्तां तान् हस्ते कुरुताम् अतः सैता सावित्री भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. माङ्गल्यधारण मुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु शुभं शुभम्. మొక్కేను వాపి దుఃఖీవు పారాలు నీవు దొరకని
चित्तं जस्वाहा चिच्चस्वाहा आकोतं जस्वाहा आकोदिश्चस्वाहा विज्ञातं जस्वाहा विज्ञानं जस्वाहा मनस्सत्वाहा चक्वरेश्चस्वाहा पूर्णमादत्तस्वाहा वों भूस्वाहा वों भवत्वाहा वोगुं सुवत्वाहा वों भूर्भुवस्वाहा अजुतेन्वमुद्गुस्तानमतेन्वमुद्गुस्ताः सरस्वतेन्वमुद्गुस्ताः देवदविदप्रासावेः प्राणानाय्य अस्यां शुभदिदौ श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् उपासनाख्यो लाजहोमं करिष्ये अतिथेन मन्यस्वानमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवदविदप्रसुव इमाल्लाजानमित्यभिकार्य इमां लाजानावपामि समुद्यकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नाद्रुवब्रोदेज्ञो लाजानावपन्ते दीर्घाजुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समुद्यकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नाद्रुवब्रोदोऽज्ञो लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा इमां लाजानावपामि समुद्यकरणान् मम तुभ्यं च संवदनात् तदग्निरनुमन्यताम् इयन्नाद्रुवब्रोदोऽज्ञो लाजानावपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवत्वाहा ओं सुभस्वाहा ओं भूर्भुवत्स्वाहा अतिथेन्वमुद्गुस्तानमतेन्वमुद्गुस्ताः सरस्वतेन्वमुद्गुस्ताः देवदविदप्रासावेः प्राणानाय्यास्यां शुभदिदौ श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् औपासनाख्यो सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवं होष्के अतिथेन मन्यस्वानमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवदविदप्रसुव ओं मदो देवावन्द्रो यदो विट्टर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विट्टर्विचक्रमे त्रयधानतदेपदं समूढमस्य वागुंसरे स्वाहा त्रीणि पदाविचक्रमे विट्टर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कते दो व्रतानि पुष्पसे इन्द्रस्वयुज्जस्सका स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्तु शौर्यः दिवे वचक्षुरादरग्गुस्वाहा तद्विप्रासो पञ्चवो जाग्रवागुं तस्मिन्ददे विष्णोर्यत् परमं पदग्गुस्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवत्वाहा ओं सुभस्वाहा ओं भूर्भुवत्स्वाहा अतिथेन्वमुद्गुस्ताः अनुमतेन्वमुद्गुस्ताः सरस्वतेन्वमुद्गुस्ताः देवदविदप्रासावेः प्राणानाय्यास्यां शुभदिदौ श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गम् औपासनाख्यो उपरिट्टादन्तो होमं करिष्येति तेन मन्यस्वानुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवदविदप्रसुव यदस्य कर्मणोत्तरे ऋचं विद्वान्योर्मिहाकरम् अग्निस्वष्टकुद्विद्वान् सर्वकुसुकृतं करोतु स्वाहा अग्नये सुतवृतावधेनां कामानाकुन्तमध्ये त्रये स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नेनादाय स्वाहा अग्नेनपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतममुष्मै स्वाहा अग्नये सुष्टुकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्मात्माभूदग्निस्तत्पुनरागः जातवेदावचर्षणे स्वाहा पुनरग्निचक्षुरनात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे चुमायमाचक्रादचमक्षः स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा वेषधृत्ये स्वाहा निष्कृत्ये स्वाहा दौराज्ये स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा समृद्ध्ये स्वाहा सर्वसमृद्ध्ये स्वाहा वेदो शेदसे महे स्वाहा समिदसे तेजो मेदे स्वाहा नमस्य देव मृत्योर्मो वायु स्वाहा सोमस्य देव चित्तं मे वायु स्वाहा वाजोर्दे महे प्राणान् मे वायु स्वाहा ब्रह्मणोदे महे बुद्धिं मे वायु स्वाहा सप्तद यज्ञे समिद सप्तजिह्वा सप्तऋषिः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तदात्मा युन्त सप्तजोने रात्मनस्मा कृते न स्वाहा अग्निर्भुक्तगुस्वाहा वेदर्भुक्तगुस्वाहा जोर्भुक्तगुस्वाहा पृथ्वीभुक्तगुस्वाहा अग्निर्जेन्नं वेदिर्जेन्नं जोर्जेन्नं पृथ्वीजेन्नं वोषमनसप्तजेवजेर्नगुस्वाहा ऋतदान विद्मा अनुष्टुभृतेन पूर्णबाहुतिञ्जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निसृप्यतो वेदसृप्यतो ज्योतिसृप्यतो पृथ्वीसृप्यतो
ब्रह्माद्या सुप्यन्तामृतेन्वमुग्गुस्तान्मतेन्वमुग्गुस्ताः सरस्वतेन्वमुग्गुस्ताः देवदविध प्रासावेः आवाह्य देवताभ्यो नमः यदा सुपदास्तानप्रतिष्ठापजां क्षोभनार्दं क्षेमाय पुनरागमनाय च पवित्रमज पवित्र में बोझा स्वाहा सर्व सर्व में बोझा स्वाहा अक्षतमक्षते जुहोमे अक्षरमा में श्रेष्ठा प्राच्यां दक्षिणायां मुद्रायां मुदे च मुद्भायां अधराजां मार्तयन्तां पश्चिमदः परिधिमपनया सर्वान् परिसमोह्याभ्य प्रोक्ष आप्यायन्तामिति होदे आप्यायन्तामापवोषदयोमृतां पृषस्पततो नो विट्टमेन यस्माः शुद्ध्यन्तान् देवसदनकुं शुद्ध्यन्तान् देवसदनो भूतिस्मातेर्लभते नित्यगुं सर्वजज्ञकृतं भवेदग्निर्मार्तजोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयाजुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयाजुषं यद्धेवानां त्रयाजुषं तन्मे अस्तु त्रयाजुषं दीर्घायुष्माय फलाय सताय मदन्तवट्टशे त्रयाजुषम् आभोजक्षामजोपभस्तानवोर्जेतदादना महेरणाय चक्तशेजोपस्सवदमोरदत्तस्य मादयदेनः सुखदेरिम मातरः विस्मारङ्गमापस्तति आपो जनगदा मंत्रहेण क्रियाहेण भक्तिहेण कृतासनकृतन्तु मया देव परिपूर्णस्वतश्च वै प्रायश्चित्तानि शेषान् होमकर्माणि वै दानशेषानि शेषेण श्रीकृष्ण स्मरणं पदं कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्धात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनर्पाद्यर्घ्यं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदास्कमदास्तानं प्रतिष्ठापयां क्षोभनार्दं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्निपुरुषाय नमः गुलोपहारं निवेदयामि आद्योपहारं समर्पयामि तत्त ब्रह्मार्पितमस्तु सर्वं श्री भूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पितमस्तु சாய் திருவேங்கடமுடையானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் லாஜஹோமம் பிரதான ஹோமம் அஞ்சனமிடுதலை செவித்தோம். பூர்ணாகுதியையும் பார்த்து இதோ இப்பொழுது வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை செவிக்க இருக்கிறோம். ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் என்னும் தலத்திலே விஷ்ணு சித்தருக்கு துளசி வனத்திலே கண்டெடுக்கப்பட்ட குழந்தை கோதாதேவி. அந்த கோதாதேவியை ஆண்டாள் என்று பெயர் சூட்டி அந்த விஷ்ணு சித்தர் பெரியாழ்வார் வளர்த்து வந்தார். பாமாலைகளுடன் பூமாலையையும் தொடுக்க அவளுக்கு பாடம் கற்பித்து அனைத்து வித பயிற்சிகளிலும் தேர்ச்சி பெற செய்தார். அந்த வாரணமாயிரம் பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டுதான் தேங்காய்களை உருட்டினார்கள். அதாவது தன்னுடைய கனவின் விற்த்தாந்தங்களை கூறும் கைங்கரியமே வாரணமாயிரம். அதேபோல் அந்த மாலைகளை தொடுத்து தன்னுடைய கழுத்திலே முதலே சூடி அதன் பிறகுதான் பகவானுக்கே சமர்ப்பிப்பாள். அந்த கைங்கரியத்தை ஒரு நாள் பார்த்துவிட்டு விஷ்ணு சித்தர் கடிந்து கொண்டார். அதன் பிறகு அந்த மாலைதான் பெருமாள் விரும்பினார். இதோ அப்படிப்பட்ட மாலையை திருமலை அப்பனுக்கும் சூட்டி அந்த மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு
அந்த மாலையானது முதலில் சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. ஸ்ரீதேவி பிராட்டி மாலையை அணிந்து கொள்ளுகிறாள். ஸ்ரீதேவி பிராட்டி மாலையை அணிந்து கொண்டு அதன் பிறகு வேங்கடவனுக்கு அந்த மாலையை அனுப்புகிறாள். திருவடிகளை சேவித்து கொண்டு பகவான் திருவேங்கடமுடையானுடைய கழுத்தை அலங்கரிக்க செல்லுகிறது அந்த மாலையானது. இதோ திருவேங்கடமுடையானுடைய தோள்களை அலங்கரிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஸ்ரீ வெங்கடேசா ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. அதைத் தொடர்ந்து அந்த திருவேங்கடவன் பூமி பிராட்டிக்கு மாலையை அனுப்புகிறார். பூமி பிராட்டி ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே ஆண்டாளாக அவதாரம் எடுத்தவள். விஷ்ணு சித்தரின் மகளாக வளர்ந்தவள். வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பூமி பிராட்டி மாலையை அணிந்து கொண்டு களைந்து பிறகு பகவானுக்கு அனுப்புகிறாள். அதுதான் அவள் சூடி கொடுத்த நாச்சியாரானாள். அந்த சூடி கொடுத்த நாச்சியார் அனுப்பிய மாலையை பகவானுடைய திருக்கழுத்திற்கு சென்று அடைகிறது. மலையப்பனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை பகவானுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அதைத் தொடர்ந்து அக்ஷதாரோபணம் என்னும் தலம்பிராலு கைங்கரியம், அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்துடன் திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நிறைவு பெறுகிறது. உலகெங்கு இருக்கும் பக்தர்கள் அனைவருக்கும் கூட பகவானுடைய கருணா கடாட்சம் வேண்டி இதோ இப்பொழுது அக்ஷதாரோபணம் மங்கள நீராஜனத்தை சேவித்து கொண்டு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை முடிக்கிறேன். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா. திருமலை வாசா வெங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அக்ஷதாரோபணத்தை செவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அதைத் தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனம் நடைபெற உள்ளது. கோவிந்தா. ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद।
प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ